دنیا کی کوئی چیز اتنی پاک اور شفاف نہیں جتنا پاک وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب پر اندھا اعتبار کر لیں، یقین کر تیرا رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کم سن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس زمین میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہگار لوگوں کی محفل میں شرکت کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتا۔ ایسی محفل میں جہاں کھلم کھلا گناہ ہو، شامل ہونا ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول چیزوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دو، احمق اور بے وقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے سے بڑوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ثواب مجھ سے زیادہ ہے، اور اپنے سے چھوٹوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور ضرور کرنا چاہیے، کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دی، جیسے کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی ضرورت مند کی تھوڑی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، چپکے سے کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ آگ خوش لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہے۔ لوگ دین میں ان کے اس طرح ضرورت مند ہیں جس طرح دنیا میں کھانے پینے کی ضرورت مند ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ محبت کیا ہے؟ ہم اس بات کو نظر انداز کر دینا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت بندے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے کہ بندے کو معافی دی جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تم اپنی ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔
कुआं खोदने वाले कुएं में गिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक़ पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। दरख्तों से ताल्लुक़ का हुनर तो सीख ले इंसान, जड़ों में ज़ख्म लगते हैं टहनियाँ सूख जाती है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, वालिदैन की खिदमत, उस्ताद का अदब, मांगने वाले और यतीम की दुआ दिल के सुकून के ज़रिए हैं। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनवाए सुकून नहीं पाएगा। किसी चीज़ को और किसी शख्स को कबूल करने से पहले जो मर्ज़ी तहकीक कर लिया करो, मगर जब कबूल कर लिया तो निभा जाना ही कमाल है। अगर पैसे से किसी की खिदमत कर सकते हो तो पैसे दे दो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो मीठी ज़बान से खिदमत कर दो, यह आपका दीन है। हर अमल करने वाला जन्नत में नहीं जाता, हर गुनाह जहन्नम में नहीं जाता। इबादत गुरूर पैदा करे तो मारे गए बर्बाद हो गए, गुनाह आजिज़ी पैदा कर जाए तो शुक्र है बच गए। जो तकलीफ़ दे गया मैंने उसको भी तकलीफ़ नहीं देनी। तुम इस मुकाम पर पहुंच जाओ, आपको अल्लाह का कुर्ब फ़ौरन मिल जाएगा। नेक आदमी का मुस्तक़बिल कभी तारीख हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया से सूरज चला ही जाए। आप फरमाते हैं, जिस इंसान को रोना नसीब हो गया वो आदमी ज़िंदगी में 1000 बार अपने गम का शुक्रगुजार होगा कि या अल्लाह आपने मुझे पसंद कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी पसंदीदा आदमी के करीब होने का नाम दुरूद है, जबकि ये महसूस हो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है। आप फरमाते हैं, एक आम आदमी अपनी ज़ात के लिए भी बाइस रहमत नहीं हो सकता और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ये तेरा नफ्स बदयकीन है, जिसने नमरूद को भी तबाह किया, एक फाड़ खाने वाला भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालिफत करते रहो। कोशिश करने का आपको हक है, मगर गिला करने का हक नहीं। अल्लाह से अज्र ना मांग कि अज्र तो मजदूर मांगा करते हैं, तो अल्लाह से सिर्फ उसकी विज़ा मांग। अगर इश्क जिंदा हो तो नफ्स का असर ख़त्म हो जाता है। करीब हो जाने से झगड़ा ख़त्म हो जाता है। झगड़ा तो दूरी पैदा करती है, उल्फ तो खामोशी पैदा कर देता है। अल्लाह के दोस्तों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चे की तरह हैं जो दुनिया के खेल में मगन है। अगर तेरे ख्याल में इंसाफ नहीं तो अमल में इंसाफ हो ही नहीं सकता। वाफ़े की आँख उस वक्त खुलती है जब वो बंद होने वाली होती है। बात ही रह जाएगी तारीख में, वरना इस दुनिया में जो आया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आंसू सिर्फ दिल सख्त होने की वजह से खुश्क होते हैं और दिल का सख्त होना सिर्फ गुनाहों की वजह से होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला आमाल में से सिर्फ उसी को कबूल फरमाते हैं जो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो, और जिस अमल में सिर्फ अल्लाह ताला ही की खुशनुदी मकसूद हो। बेशक जो शख्स अल्लाह की इताअत और उसकी नाफरमानियों पर अपने नफ्स से लड़ता है और जिहाद करता है, वो अल्लाह के नज़दीक नेक शहीद जैसा है। मुसाफिर हर बशर है, कोई नहीं यहाँ जाविदा, कब छोड़ जाएंगे जहाँ किसी को क्या खबर। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, दुआ की ज़ंजीर खटखटाना भी कुर्ब है। दुआ से महरूम होने वाला अल्लाह से महरूम हो गया।
दुआओं का आसरा छिन जाए तो समझो कि अजाब शुरू हो चुका है। हर खुशी के अंदर एक गम है और हर मायूसी के आलम में उम्मीद जलवागर है। आप फरमाते हैं, जब अल्लाह कहे कि अभी ज़िंदा रहो तो हम ज़िंदा रहें, और जब वो कहे कि अब वापस आने का वक्त है तो हम खुशी से रुखसत हो जाए। मोहब्बत को पहचान लेने वाला इंसान हर तरफ हुस्न ही हुस्न देखता है। वो हंसता है बेसबब, रोता है बिला वजह। मोहब्बत की कायनात जलवे महबूब के सिवा कुछ और नहीं। नशा किसी भी चीज़ का हो, इंसान को गुलाम बना देता है। इन जिंदगी का एक ऐसा आईना है जिसमें मौत का अक्स दिखाई देता है। आप फरमाते हैं, शुक्र करता हूँ उस इंसान का जिसने मुझे आंसू दिए, क्योंकि ये आंसू ही मुझे अल्लाह की बारगाह की जानिब ले गए। दुआ ये करो कि रे अल्लाह, जो कुछ तूने देना है बगैर मांगे दे दे, और जो कुछ तूने नहीं देना वो मांगने की तौफीक ही न दे। वो आदमी जिसके लिए दुनिया में रहना और जाना बराबर हो, वो मोमिन है। इस कौम में तामीर, तालीम और सेहत के शोबे फ़ायदा बख्श कारोबार बन जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत तबाही से नहीं बचा सकती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज़ देखता है कि उसकी उम्र और सांस कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता। अगर सिर्फ अल्लाह को मानना ही सारा ईमान होता तो शैतान भी एक मोमिन होता। आहिस्ता आहिस्ता चलना और मंजिल तक पहुंचना दौड़ने और रास्ते में रह जाने से बेहतर है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, और अपनी मेहनत पर भरोसा कर दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। एक शख्स इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के पास आया कि फला शख्स आपकी बुराई करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो चुगलखोर है, और अगर झूठा है तो फासिक। इस बात पर वो शख्स शर्मिंदा होकर चला गया। मुझे ऐसी सिफत दे मेरे मालिक, कोई प्यासा जो देखूं तो दरिया हो जाऊं। अगर बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, बड़ी से बड़ी और आसान बुजुर्गी यही है कि हमें अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। जो फज्ल हो जाता है तो माँ बाप राज़ी हो जाते हैं, बीवी और औलाद भी राज़ी हो जाती हैं, बल्कि सब राज़ी हो जाते हैं। इसलिए फज़ल की दुआ मांगते रहना चाहिए। यानी आप खुद राज़ी, जब खुद राज़ी तो अल्लाह राज़ी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुनिया के लिए यही आयब काफ़ी है कि इसमें वफा नहीं। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। तीन बड़े काम मुश्किल हैं, हर हालत में अल्लाह को याद रखना, माल के ज़रिए अपने भाइयों की मदद करना, और लोगों के साथ उससे इंसाफ करना। तौबा रूह का वसी है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। जो तालीम की तलखियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता वो जहालत की ज़िल्लत में बाकी रहता है। जो लोगों से कम आरज़ुएं वाबस्ता रखे और उनसे बेनियाज होकर रहता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे गनी और बेनियाज कर देता है।
हसद करने वाला नफरत करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। झूठों की सबसे बड़ी सजा ये है कि उनका सच भी झूठ समझा जाता है। वो शख्स अपनी जिल्लत पर राजी हुआ जिसने दूसरों के सामने अपनी मुश्किलात जाहिर की। जाहिल अपनी कोताही को नहीं जानता और अपने खैरख्वाह की बात कबूल नहीं करता। गुस्सा एक किस्म की दीवानगी है, क्योंकि गुस्सा करने वाला बाद में शर्मिंदा ज़रूर होता है, और अगर वो शर्मिंदा ना हो तो यकीनन वो दीवाना है। गुस्से से डरो, क्योंकि ये शैतान के लश्करों में से एक बड़ा लश्कर है। जिसके पास अक्ल नहीं उसके पास अदब नहीं, जिसके पास हिम्मत नहीं उसके पास कामयाबी नहीं, और जिसके पास दीन नहीं उसके पास हया नहीं। इस शख्स को अपने नफ्स को दुरुस्त करने की ज़रूरत हो, उसको चाहिए कि नफ्स को खामोशी और अदब की लगाम लगा दें और नफ्स को तक़वे की ज़िला पहना दें। यही उसके मुतमइन्ना बनने और अल्लाह ताला तक पहुँचने का ज़रिया है। इज़्ज़त दर हकीकत वो होती है जो बंदे को अल्लाह के दरबार में हाजिर करे, और ज़िल्लत वो है जो इंसान को अल्लाह से वाइब और माफ़ी कर दे। जिस मालिक की मिल्कियतें, उसकी परवरिश और उसकी हलाकत दोनों मालिक ही के कब्ज़े में है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर रिस्क अक़ल और दानिश्वरी से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ होके मर जाते। इंसान की तमाम परेशानियों की वजह मुक़द्दर से ज़्यादा चाहना, वक्त से पहले चाहना, और जो मिला है उस पर राज़ी रहने की कमी है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको फ़िक्र व अमल की तौफीक दे। बेहतर है कि दिल में अल्लाह के इश्क की आग रोशन की जाए। ये आग हर किस्म के शक और शुबह को जलाकर खाक कर देती है और यकीन की दौलत हासिल हो जाती है। क्या तू जानता है कि नफ्स क्या चीज़ है? नफ्स वजूद के अंदर छिपा हुआ काफिर है, जिसे सिर्फ नाशुक्रा ही दोस्त रखता है। हज़रत याहिया मुआज़ लाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि किस तरह मालूम हो कि अल्लाह राज़ी है या नहीं, तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, तुम्हारा राज़ी होना उसके राज़ी होने की अलामत है। जब इंसान अपने नफ्स से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तभी उसे काबू में ला सकता है, और वो नफ्स से ज़्यादा ताकतवर तब होगा जब उसकी बात मानने से इनकार करने की हिम्मत कर पाए। जब तक उसकी ख्वाहिशात मानता रहेगा उसके ताबे और नीचे रहेगा, बस अपने नफ्स से कमज़ोर रहेगा। जो तुम चाहते हो उसे सिर्फ इसी सूरत में पा सकते हो जबकि तुम उस पर सब्र करो जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते। आज जबकि ज़बानें आज़ाद, जिस्म तंदुरुस्त और तेरे आज़ा नर्म है, फ़िज़ा कुशादा और मैदान वसी है, तो अमल करो इससे पहले कि जान निकल जाए और मौत वाक़ई हो जाए। जो शख्स दो चेहरों और दो ज़बानों का मालिक हो वो बुरा आदमी है। वो अपने दीनी भाई के सामने उसकी तारीफ़ करता है और उसकी गैर हाज़िरी में उसकी मजम्मत करता है। अगर उसका भाई खुशहाल हो जाए तो उससे हसद करता है, और जब वो मुसीबत में हो तो उसे उसके हाल पर छोड़ जाता है और मदद नहीं करता। मुबारक है वो दिन जो गमगीन है, क्योंकि वो आखिरत में तसल्ली पाएंगे। एहसान इंसान को गुलाम बना लेता है। एहसान के ज़रिए दिलों पर हुकूमत की जा सकती है। बेहतरीन अदब ये है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपनी मिक़दार से आगे ना बढ़े।
अपने रब से खौफ और उम्मीद से मांग। इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर फ़र्ज करो अगर अल्लाह अता कर दे और फिर आप अल्लाह की अता और बख्शिश भूल जाओ, तो इसका मतलब ये है कि आपके तसव्वुर खुदा में नुक्स है। अगरचे मैं एक चीज़ की वजह से परेशान हूँ और बार बार अल्लाह से उसकी तलब करता हूँ, और जब अल्लाह मुझे अता कर दे तो मैं अल्लाह को भूल जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह नहीं, वो चीज़ मेरी खुदा थी। मैंने उस चीज़ की खातिर अल्लाह को इस्तेमाल किया, मगर अल्लाह की खातिर उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। ये एक फ़र्क है हमारी आरज़ुओं में, हमारे मसलक में, कि हम छोटी छोटी आरज़ुओं के लिए इसमें गिरामी परवरदिगार को इस्तेमाल तो करते हैं, मगर हम इतने नाशुक्रगुज़ार हैं कि जब वो ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं फिर हम अल्लाह का ख्याल भी नहीं लाते और तर्क कर देते हैं। असल में मुसीबतों में, ज़रूरत में अल्लाह को याद करना ज़रूरत है, और ज़रूरत निकल जाने के बाद अल्लाह को याद करना शुक्र है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी मुसीबतों की रात को सुबह नहीं, वो लोग झूठ कहते हैं। दुआ से दिन का गुबार छट जाता है और रूह का सुकून लौट आता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बुरी चीज़ें बुरों के लिए हैं और अच्छी चीज़ें अच्छों के लिए हैं। नापाक लोगों को अंबिया की अच्छी नसीहतें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वही की खुशबू उनके दिमाग के मुताबिक नहीं होती। खिजा कर शिकवा मत करो, गम के साथ यूँ चलो जैसे कोई अच्छा दोस्त। उसको सुनो क्या कहता है। बसा औखात हार की तंगी और अंधेरा वो रास्ता खोलते हैं जो हम चाहते हैं। बदला तो शुक्रगुजार को मिलता है, ना शुक्र काफिर को नहीं मिलता। काफिरों के आमाल डायगा जाते हैं, अल्लाह ने मोमिनों की तेबी इस्लाह कर दी है। ना शुक्रे से हुस्न और खूबी इस तरह ज़ाहिर होती है कि फिर उसका निशान भी नहीं मिलता। जज्ब हो जाएंगे इस खाक में एक दिन हम भी, पी गई है ये ज़मीं यूं ही समंदर कितने। मौलाना रूमी फरमाते हैं, लोगों से लड़ने में वो ताकत ज़ाय ना करो जिस ताकत को तुम्हें अपने नफ्स से लड़ने में इस्तेमाल करना है। तरफ ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है तो बदले में मैं उसे फल देता हूँ। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है, जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जो शख्स खुद अपने ऊपर और अपनी ख्वाहिशात पर हुकूमत करना नहीं जानता, याद रहे कि वो हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा। सोच को इस तरह मुस्बत बनाया जाता है कि जब किसी इंसान को देखो कि उसके हाथ में खाली बर्तन है तो ये न समझना कि मांगने चले आया है। तुम यूँ कहो, हो सकता है कि वो सब बांट कर आ रहा हो। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नियतों में खोट रखकर कामयाबी कैसे खरीदी जा सकती है। हम दरख्तों को पत्थर मारते हैं और ये बेचारे जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जवाब में बद्दुआ देने की बजाय अपना मीठा तरीन फल हमारी तरफ उछाल देते हैं। क्या आप इंसानों में कोई एक भी इतना आला सिर्फ ढूंढ सकते हैं? हर इंसान का एक अपना ज़ाती संदूकचा होता है जिसमें उसकी ज़िंदगी के सारे सच, कुछ तस्वीरें, चंद खत और गुजरे वक्तों के नक्शे पड़े रहते हैं। जो आंसू ना होते आँखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। जो दर्द ना होता दिल में तो खुशी की कीमत पता ना होती। जो बेवफाई न की होती वक्त ने तो वफा की कभी चाहत ना होती।
अगर सोचने से पूरी हो जाती मुरादें तो दुआ की कभी ज़रूरत ना होती। एक शख्स कब्रिस्तान से गुजरते हुए रुका और कहा, कितने सुकून से सो रहे हो। कहीं से आवाज़ आई, सो तो तुम रहे हो, ये तो सोने की सज़ा भुगत रहे हैं। दुनिया की फिक्र मत करो, कोई कब्र में आकर तुम्हारा हिसाब नहीं देने वाला। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है, इन्नमाल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। जब जिंदगी में तन्हा हो जाओ तो जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है और इसीलिए उसने सबको तुमसे दूर कर दिया। इंसान की राहत उसकी ज़बान की हिफाजत में है। हर चीज़ अधूरी है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तुम्हारा क्या है, सब कुछ अल्लाह का है, यानी कि तुम भी। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, बेवकूफ़ की सोहबत से तन्हाई बेहतर है, लेकिन तन्हाई से बेहतर है कि अच्छे लोगों की तलाश जारी रखो, यकीनन तुम अंत तक पहुँच जाओगे। इंसान को अपने अखलाक की पाबंदी करनी चाहिए, वरना मरते वक्त पछतावा उसका मुकद्दर बन जाएगा। ज़मीन पर जन्नत का एक ही रास्ता है और हम उसे मोहब्बत कहते हैं। आप फरमाते हैं, आदमी का वजूद इश्क से ही कमाल तक पहुंचता है। अगर तू ये कमाल नहीं रखता तो तेरी ज़िंदगी नुकसान में है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुझे ऐसे शख्स पर ताज्जुब होता है जो लोगों के दिलों में घर करने की उम्मीद में बनावट से काम लेता है और भूल जाता है कि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह किसी खुशकिस्मत इंसान पर मुसीबत लाता है तो वह सिर्फ अल्लाह के करीब ही आता है। जिस बंदे में अदब नहीं, उसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं। जो अल्लाह का हुक्म अपनी ज़ात पर नाफिज कर गया, वो कभी जलील और रुस्वा नहीं होगा। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त तक पहुंचा देता है। दीन का दारोमदार मोहब्बत और ख़ैरख़्वाही पर मौक़ूफ़ होता है, और बहस तो मुनाफिकत की जड़ है। करके देख लो, बहस से मुनाफिकत के सिवा कोई और चीज़ कभी हासिल नहीं होती। कहो, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मक्कार दोस्त से कि उसकी आंखें तो मुझे देखती हो और दिल चीरे लेता हो। अगर मुझ में भलाई देखे तो उसे दबा दे, और अगर बुराई देखे तो उसे फैला दे। बदतरीन दोस्त वो है जो दोस्त की अच्छाई को गुम कर दे और बुराई को फैला दे। खाक करने वालों की क्या अजीब ख्वाहिश है, खाक होने वालों को ख्वाब भी न समझा जाए। इश्क अपने परों तले एक तेज तलवार रखता है। यह हमारे अंदर मौजूद हर चीज़ को हटा देता है जो उससे मुताल्लिक नहीं। जो आंखें दुनियावी रंगीनियों से जुदा हो जाए, उन आँखों का मरकज़ दिल होता है, और फिर दिल अल्लाह की जानिब हो जाता है। फ़कीर ने कहा कि जब मैं गुजर रहा था और मेरे पाँव से छींटा उड़ा और उस औरत के लिबास पर पड़ा तो उसके यार को गुस्सा आया। उसने मुझे मारा तो फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। अल्लाह के इश्क तक पहुँचने का बेहतरीन रास्ता आंखें बंद करने के बाद मिलता है। अल्लाह का नूर किसी भी तारीक दिल को रोशन कर सकता है। इश्क बदसूरत नज़रों और हक़ीर लोगों के कानों से पोशीदा है, और इसका जायका शैतानी ज़बान नहीं चख सकती। इल्म दर हकीकत पुल सिरात की तरह है, जो इद्स और इंकिसारी अख्तियार करता है वो उसे पार करके जन्नत का हक़दार ठहरता है, और जो तकब्बुर और रियाकारी इख्तियार करता है वो जहन्नम में गिर जाता है।
مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے تو ایک بار پلٹ کر پیچھے ضرور دیکھیے، کہیں آپ کی دوڑ میں آپ کی وجہ سے کوئی کچلا تو نہیں گیا۔ تیرا کردار ایک نمونہ ہو اور ساری دنیا کے لیے، جس کام کو کوشش 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا کرم دم بھر میں کر دیتا ہے۔ اے اللہ، تیرے کرم کی کوئی حد نہیں، تیرا کرم مکمل اور تو کریم ہے، بے مثال ہے۔